all of you. Today we will start the new chapter, that is optics. As you know, as you studied in the previous classes, the optics is that branch of physics which deals with the light and light related phenomena. For example, interference, diffraction, Snell's law, polarizations, etc., etc. Today we will focus a special part of the light phenomena, that is diffraction of light. In the previous classes you have studied a simple definition of diffraction of light, that is diffraction of light. What is that? Bending of light through sharp edges. This phenomena is known as your diffraction. That means you have seen, you have observed in daily routine when you are sitting in a room and light comes from the lower side of the door, and light comes from when the window is closed, when light comes from the sharp edge of the window. That is the bending phenomena. That means the light bends through the sharp edges. तो जो आपका डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स है वो आपका क्या है, लाइट से रिलेटेड एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट जो है वो एंटर करती है आपकी शार्प एजेस जो होते हैं किसी भी डोर से, विंडो से, फॉर एग्जांपल ब्लेड से टकरा कर जब भी वो लाइट आती है और वो बेंड हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से, तो दैट इज नोन एज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इन सिंपल वे वी कैन से दैट bending of light through the sharp edges is known as diffraction phenomena. Diffraction in recent classes or in graduation we will study this diffraction in more detail. That is, what is diffraction? In what is the meaning of diffraction in the higher classes? That is, we can define this phenomena diffraction, that it is obtained due to the superposition of the light wave or light wavefront of different parts of the same wavefront. तो आपका डायफ्रैक्शन जो फिनोमिना है वो क्या है कि एक वेवफ्रंट के बारे में आपने पहले ही सुना है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा. जो है वेवफ्रंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस वेव्स ऑफ लाइट है जिसके अंदर नंबर ऑफ जो रेज हैं वो आपका एक वेवफ्रंट को फॉर्म करते हैं. और फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो वेवफ्रंट है वो आपके तीन टाइप के होते हैं: इलिप्टिकल वेवफ्रंट, स्फेरिकल वेवफ्रंट, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट. तो और प्लेन, फॉर एग्जांपल प्लेन वेवफ्रंट, cylindrical shaped wavefront is generally referred to the plane wavefront because the cylindrical wavefront which comes from the infinity, they are referred to as the plane wavefront. तो मेनली जो हम जो वेवफ्रंट पढ़ते हैं वो आपका स्फेरिकल, सिमेट्रिक, प्लेन वेवफ्रंट और आपका इलिप्टिकल वेवफ्रंट पढ़ते हैं. तो जब भी हम बात करते हैं डायफ्रैक्शन फिनोमिना की, दैट मींस वी आर डीलिंग विद द प्लेन वेवफ्रंट इन योर स्टैंडर्ड अप टू ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड. तो आपका डायफ्रैक्शन जो फिनोमिना है लाइट का, वो क्या है आपका, इट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द लाइट वेव्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेवफ्रंट. कि सेम वेवफ्रंट से जब भी लाइट जो है सुपर इम्पोज करती है, अलग अलग वेवफ्रंट आपस में सुपर इम्पोज करते हैं, तो जो नया वेवफ्रंट जो बनता है वो आपका क्या कहलाता है, डायफ्रैक्शन फिनोमिना. Just like the interference phenomena, diffraction also have the fringes, but the nature of the fringes in diffraction pattern they differ from the interference fringes. In the diffraction fringes, the central maxima not exactly zero, but the interference fringes you have the central minima. Central minima is exactly zero. When you move from the central minima in the diffraction process, the intensity of the fringes decreases as you go through the edges. जैसे जैसे आप फॉर एग्जांपल आपका ये डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है हमने ऑब्जर्व किया, ये आपका मिनिमा है.
मिनिमा मीन्स आपका डाइफ्रैक्शन फ्रिंजेस है। तो जैसे जैसे आप मूव करोगे मिनिमा की बोथ साइड की तरफ, तो आपके जो डाइफ्रैक्शन का जो मीनिंग जो साइज है और जो इंटेंसिटी है वो आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट इसका जो इन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देयर इज नो डिक्रीज इन दिस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, you will get the same intensity fringes in the interference phenomena of light। तो इन कंक्लूजन्स के बेसिस पे हम डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फिनोमेना को जो है हम आपका डिफाइन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 4 या 5 मार्क्स के अंदर कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन और डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप ऑफ द डाइफ्रैक्शन फिनोमेना। तो आपका बेसिक डेफिनेशन इंटरफेरेंस की जो कि आप हमेशा पढ़ते आए हैं वो क्या है कि इंटरफेरेंस जब भी होता है दो कोहेरेंट सोर्स के बारे में, कोहेरेंट सोर्स के बीच में होता है। कोहेरेंट सोर्स मींस कोहेरेंट लाइट सोर्स या कोहेरेंट रेज के बीच में या कोहेरेंट वेव के बीच में होता है कि अगर किन्हीं दो वेव के बीच के अंदर आपका पाथ डिफरेंस कांस्टेंट है, सेम है, और वी कैन से दैट इफ द टू वेव्स आर इन फेज और path difference have constant value when they wave or when they ray of light superimpose to each other, they form the interference pattern. In the second portion, in diffraction is obtained superposition of the light of different part of the wavefront. Second point is the fringes we will get in the interference pattern are uniform fringes, means intensity of the interference fringes they are same both side the minima. In the diffraction pattern fringes intensity of the fringes decreases as we go through from central minima to edge of the shadow की से जैसे हम सेंट्रल मिनिमा से जैसे हम जो दूर की तरफ जाते जाएंगे तो आपका जो फ्रिंजेस का जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगा। नंबर 3 पॉइंट इंटरफेरेंस में आपका जो मिनिमा है वो आपका एग्जैक्ट जीरो ऑफ इंटेंसिटी का होगा। बट इन डाइफ्रैक्शन पैटर्न इट इज नॉट कंपल्सरी दैट द minima of the central fringes must be exactly zero. This is the basic difference of the interference pattern. The intensity at minima is exactly zero. There is a good contrast between bright and dark fringes, but in diffraction pattern the intensity of the central minima is not exactly zero and the intensity of the dark and bright fringes they are vary from each other. All the interference next point is next difference in interference and diffraction pattern is that all the bright fringes are same intensity and in the diffraction pattern all the fringes have different intensity, or we can say that intensity goes on decreasing as we move from the edge of the shadow. तो डाइफ्रैक्शन, ये आज हमने डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का एक बेसिक डेफिनेशन और उनके बारे में डिफरेंस पढ़ा। फिर डाइफ्रैक्शन जो है वो उसके ऊपर भी अलग अलग लोगों ने जो है टाइम टू टाइम अलग अलग काम किया। तो उनके ऊपर जो मेन काम करने वाले जो लोग थे वो थे फ्रेस्नेल और आपके फोन जिन्होंने डाइफ्रैक्शन को डिस्टिंग्विश किया और उन्होंने ये बताया कि जो डाइफ्रैक्शन जो प्रोसेस होता है वो भी आपका 2 टाइप का प्रोसेस होता है। तो ये एग्जामिनेशन में कई बार कंप्लीट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज डाइफ्रैक्शन, डिफाइन 2 टाइप ऑफ डाइफ्रैक्शन या डिफरेंशिएट 2 टाइप ऑफ डाइफ्रैक्शन। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ diffraction pattern or diffraction process, that is form of a diffraction and second is your Fresnel diffraction। तो form of a diffraction क्या होता है बच्चों? The distance of the source and stream from diffracting element are infinite. For example,
जब भी सन से कोई रेज आ रही है आपके बीच में और वो ड्यू टू द एयर मॉलिक्यूल और गैसेस मॉलिक्यूल्स के कारण जो है अपने पाथ को जो है बेंड करती है, तो वो जो डाइफ्रैक्शन, उस समय जो डाइफ्रैक्शन हो रहा है लाइट वेव के साथ, दैट इज नोन एज योर फॉर्म ऑफ अ डाइफ्रैक्शन। जैसे कि आप मान लो किसी भी स्टार्स की बात करें, जो एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी में काम करने वाले लोग जो हैं, तो वो मेनली जो डाइफ्रैक्शन फिनोमिना स्टडी करते हैं, डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो स्टडी करते हैं उनके फ्रिंजेस का, वो फोन ऑफ डाइफ्रैक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि जिस स्टार से वो लाइट आई हुई है वो डिस्टेंस जो है इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। दैट मींस द डिस्टेंस इज मच वेरी वेरी लार्जर फ्रॉम द सोर्स and the screen, but in Fresnel diffraction the distance between the screen and the source, that is finite distance, एक measurable distance है। जो हम आपने फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का प्रैक्टिकल आपने किया भी होगा या आपने पढ़ा भी होगा लैब के अंदर, +1 में +2 में किसी ने कराया हो, तो आप ये देखोगे जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के द्वारा हम जो प्रैक्टिकल या डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं वो आपका फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑप्टिकल टेबल के ऊपर ही एक साइड पे आपका जो है वो आपका फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म रखा होता है और दूसरी साइड जो है एट द सेकंड साइड जो है वो आपका माइक्रोस्कोप रखा होता है। तो एक मेजरेबल डिस्टेंस होता है। तो इस प्रकार का जो डाइफ्रैक्शन लाइट का जो बेंडिंग का फिनोमिना हो रहा है वो आपका क्या कहलाता है? आपका फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन कहलाता है। सेकंड पॉइंट जो है, आप जो है फोन ऑफ डाइफ्रैक्शन के अंदर जो भी नॉट ओनली फोन ऑफ, इट्स अ जनरल आइडिया कि जब भी फोन ऑफ डाइफ्रैक्शन की जो आपका आइडिया है उसके बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि फोन ऑफ डाइफ्रैक्शन जब भी जो होगा वो आपका सोर्स जो है इंफिनिटी के ऊपर रखा है, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो है वो इंफिनिटी के ऊपर है। बट इन फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन सोर्स और स्क्रीन जो है वो आपके फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखे होते हैं। तो सेकंड जो डिफरेंशिएट जो है वो हमारा यही डिफरेंस जो यहां से क्रिएट होता है कि जब भी स्पेस से कोई लाइट आती है, सनलाइट आई है, किसी स्टार से लाइट आई, तो उनको जो वैसे तो हम कंसीडर करते हैं कि जो भी इंफिनिटी से लाइट आती है वो पैरेलल रेज होती है, फिर भी उनको मोर एप्रोप्रिएट या मोर पैरेलल बनाने के लिए हम जो लेंस यूज करते हैं, तो कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ डाइफ्रैक्शन। बट इन सेकंड पॉइंट, इन द फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन, नो कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन द फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन। Third point is your the incident wavefront is a plane wavefront and the secondary wavefront जो imposed होते हैं, जो आपका ये भी इसी पॉइंट से कनेक्शन है कि जब भी लाइट वेव इंफिनिटी से आई दे आर पैरेलल, और उनको मोर पैरेलल बनाने के लिए लैब के पर्पस से हम उसके बीच में कन्वेक्स लेंस रख देते हैं। ठीक है, तो जो इंफिनिटी जो आपका वेव फ्रंट आपको मिलता है, जो इंफिनिटी से वेव फ्रंट आता है आपका, वो आप क्या कंसीडर कर रहे हैं? मैंने एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट द वेव फ्रंट इज योर प्लेन वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो है आते आते आपको जो मिलता है, क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा लार्ज होता है, तो हम उस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को क्या कंसीडर करते हैं? आपका प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर करते हैं। तो थर्ड बेसिक डिफरेंस इन Fraunhofer and Fresnel diffraction is that the wavefront which you get is your plane wavefront and the secondary wavefront जो आपको मिल रहे हैं वो wavefront जो है plane wavefront के द्वारा ही exposed किए हुए जाते हैं। This is your third basic difference, the third point of Fraunhofer diffraction. But in Fresnel diffraction, the incident wavefront is either spherical or cylindrical or elliptical. तीनों टाइप के हो सकते हैं। फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन के अंदर the wavefront which you get is either spherical or cylindrical or your elliptical wavefront. You will not get the plane wavefront. This is the third basic difference of Fraunhofer diffraction pattern. Fourth point is the angular inclination are important and note the distance. कि जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लो किसी सॉरी सनलाइट से जो वेव फ्रंट चल के आया, जो रेज चल के आई, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, स्फेरिकल में
फॉर्म में वहां से एमिट आउट हुई, जैसे स्पेस में आए कि सिलेंड्रिकल फॉर्म्स ने जो है वो अपना बना लिया और हमें आते आते जो मिल रहा है अर्थ के ऊपर वो प्लेन वेव फ्रंट मिल रहा है। तो वहां पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि उन चीजों को हम ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, थ्रू द स्पेक्ट्रोमीटर। और स्पेक्ट्रोमीटर आपको पता है, आपने प्रैक्टिकल भी किया है कि स्पेक्ट्रोमीटर इज दैट इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एंगुलर इंक्लिनेशन और एंगुलर डेविएशन। तो जो फोन ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न्स जो होते हैं, आप माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप यूज करते हैं, उसके अंदर हमें एंगुलर जो है डेविएशन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट रादर देन द मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस। तो हम फॉर्म ऑफ डायफ्रैक्शन के अंदर एंगुलर डेविएशन को मेजर करते हैं, तो हमारे लिए एंगुलर डेविएशन जो है इज बिकम मोर इंपॉर्टेंट, नॉट द डिस्टेंस। बट इन फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन the distance are important, not the angular deviation. ठीक है, this is the fourth basic difference of Fraunhofer diffraction. Fifth point, the diffraction can be studied with accuracy with analytical term. Analytical term means simulated based program, कि जो भी ये एक समझने की बात है कि जो सोर्स हमारे से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका सन है, या सन के क्लोजेस्ट जो स्टार है वो अल्फा सेंचुरी है, ठीक है। अल्फा सेंचुरी से जो रेज हमें मिलने जो आ रही है, हम उनको ऐसा तो होगा नहीं कि इंची टेप लेंगे या मीटर रोड लेंगे उसको मेजर करना शुरू कर देंगे। हम एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम जो है उसकी हेल्प से, फार्मूला और मैथमेटिकल की हेल्प से उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ डायफ्रैक्शन, वो आपके मेजर किए जाते हैं थ्रू द एनालिटिकल ट्रीटमेंट और मैथमेटिकल सिमुलेशन। But for Fresnel diffraction, there is no need of analytical treatment. You can simply measure the diffraction pattern with a simple meter rod or a inch tape. So this is the fifth difference, and the sixth difference is it has number of important practical application. Number of practical applications कि जो आपका फॉर्म ऑफ डायफ्रैक्शन है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है वो बहुत ज्यादा है, और इसी के बट इन फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर लिमिटेड। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्म ऑफ डायफ्रैक्शन जो है वो आपका बेसिक डायफ्रैक्शन है। जितना भी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, टेलीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, जितना भी इनके अंदर आपका किसी लाइट का बैंडिंग या ऑप्टिकल फाइबर, आप मीलों तक समुद्र के अंदर जो है इंटरनेट वायर जो है आज स्प्रेड की हुई है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए जोड़ने के लिए। तो जो फॉर्म ऑफ डायफ्रैक्शन है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं बैंडिंग ऑफ लाइट, दैट इज बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट इन आवर डेली यूज, दैट इज दे हैव द नंबर ऑफ एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम हो, सिग्नल सिस्टम हो, कैलकुलेशन ऑफ स्टार्स हो, कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन होना हो स्टार्स के अंदर, या हमें ये स्टडी करना हो कि कौन सा स्टार रेड जॉइंट फेज के अंदर जा चुका है, या हमें ये फाइंड आउट करना है कि सन लाइफ कितनी है। तो दीज ऑल आर मेजर्ड बाय द फॉर्म ऑफ अ डायफ्रैक्शन पैटर्न। जब भी मैं पैटर्न की बात करता हूं तो इसका मीनिंग ये है कि हमें कोई ग्राफ मिल रहा है हैविंग द सम अप एंड डाउन पीक्स। तो जो लोग इनके ऊपर काम करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के अंदर, वो इन सिग्नल्स को, इनकी पीक्स की वैल्यू को डिटेक्ट करते हैं और अपना सिमुलेशन या एनालिटिकल ट्रीटमेंट करके चीजों को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायफ्रैक्शन एंड different types of diffraction, that is Fraunhofer diffraction and Fresnel diffraction and their difference between them. I hope you have understand this article. In next chapter we will discuss the next topic, that is all about the it may be all about the Newton rings probably. Thank you very much.